السلام علیکم، دس از می فضا ریاض۔ پاکستان کے اندر سیاسی ماحول اتنا گرم ہو چکا ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپوزیشن کے جلسے جلوس ہوتے دیکھے تھے۔ یہ حکومت بھی جلسے جلوس کر رہی ہے اور خوب نعرے بازی کر رہی ہے اور اڈیالہ والوں کو یاد کیا جا رہا ہے۔ ہم روز جلسے کر رہی ہیں اور پھر وہ بتا رہی ہیں کہ اب ملک جو ہے وہ ترقی کی جانب گامزن ہے، اور اس میں ترقی میں صرف جو رکاوٹ تھی وہ ایک ہی تھی، اور وہ شخص اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے، اور اب وہ وہاں سے روز چٹھیاں لکھ رہا ہے، روز خط لکھ رہا ہے، روز منتیں کر رہا ہے کہ مجھے کسی طریقے سے باہر نکال لو۔ اور ایک جانب وزیر اعظم شہباز شریف ہے جو کہ کابینہ سے خطاب کر رہے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اب جو ہے وہ ملک ایک درست سمت کی جانب گامزن ہے اور ترقی کی سفر جو ہے وہ ہم طے کر رہی ہیں۔ ورلڈ بینک نے بھی ہمیں جو ہے وہ امداد دے دی ہے، جو ہمارے ساتھ جو کانٹریکٹ کیے ہیں، ایم او یو سائن کیے ہیں، بلکہ اب تو ایڈ ہمیں نہیں ملے گی، ہمارے جو ترقیاتی کاموں ہیں ان میں انویسٹ کیا جائے گا، اور ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر انویسٹمنٹ آئے گی ورلڈ بینک کی طرف سے۔ اور دوسرا، سعودی عرب نے جو ہے وہ مزید ہمیں ماہانہ تقریباً 10 کروڑ تک جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کے لیے کہہ دیا ہے کہ وہ ہم ان سے ادھار لے سکتے ہیں۔ یہ بھی آج انہوں نے خوشخبری سنا دی ہے، تو وہ آج کابینہ کو یہ کہہ رہے تھے۔ لیکن مریم نواز کیسے فرما رہی تھی عمران خان کے بارے میں، ذرا انہی کی زبانی ہم آپ کو سناتے ہیں۔ اللہ کے نظام میں ناانصافی نہیں ہے، اور ظاہر ہے انصاف کرنے کی ذات بھی وہی ہے۔ خیر، انصاف کرنے والے کون ہیں، کون کس طریقے سے انصاف کر رہا ہے، یا انصاف کو مینج کیا جا رہا ہے، یا انصاف کو مینج کرنے کے لیے مینج قسم کے ججز لائے جا رہے ہیں، اور ان مینج ججز کو لانے کے لیے مینج قسم کی امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں، اور مینج قسم کی جو امینڈمنٹس ہیں ان کو کرنے کے لیے مینج طریقے سے لوگ پارلیمنٹ کے اندر بٹھائے گئے ہیں۔ یہ بھی ایک کانسپریسی ہے جو کہ بنائی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور یہ ان کا ایک سوچ ہے جو کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام لوگ فارم 47 والے آئے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد اپنی مرضی کے بل پاس کر رہے ہیں، اپنی مرضی کے جج لے کر آ رہے ہیں اور اپنی مرضی کے فیصلے کروا رہے ہیں۔ لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ مریم نواز ایک سی ایم پنجاب ہیں، حکومت میں ہیں، اور یہ حکومت میں رہتے ہوئے اچھے خاصے کام کر رہی ہیں، اپنے کہیں نہ کہیں انوگریشن کر رہی تھی، کبھی کوئی کام کر رہی تھی، ایک دم سے جلسے جلوس اور عمران خان کی باتیں کرنے لگی ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی کے اندر یہ جو ڈویژن ہو رہی ہے، ایک فارورڈ بلاک بن رہا ہے، یہ بھی ایک الگ کہانی ہے۔ تو یہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا فارورڈ بلاک جو فواد چودھری اور شیر افضل مروت اور یہ سب لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور باقی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو نون لیگ کے اندر جو کھچڑی پک رہی ہے، اور مریم نواز جو عمران خان کو روز کہہ رہی ہیں کہ یہ منتیں کر رہے ہیں، اس میں کیا حقیقت ہے؟ سار رانا صاحب، ذوالفقار راج صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ذوالفقار راج صاحب، آپ ظاہر ہے نون لیگ کی تعریفیں ہی کریں گے، میں فارورڈ بلاک کی طرف ہی آتی ہوں آپ کے پاس۔ مریم نواز سے گفتگو آئی تھی، رانا صاحب آپ سے آغاز کروں گی میں، لیکن فارورڈ بلاک پاکستان تحریک انصاف کے اندر فارورڈ بلاک کی کہانی جو ہم ڈسکس کر رہے تھے، یہ کون کون لوگ ہیں اور کتنے کے فارورڈ بلاک بنے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر؟ مجھے پہلے یہ تو بتائیں، مطلب اس سے پہلے کتنے فارورڈ بلاک بنے ہیں؟ دیکھیے فضا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں تو نون لیگ کا نہ ترجمان ہوں، نہ مجھے تعریفیں کرنی ہیں۔ میں تو جینون بات جو ہوگی وہ کروں گا، اور جو پازیٹیو ہوگی اس کو پازیٹیو کہوں گا، جو نیگیٹیو ہوگی اس کو نیگیٹیو کہوں گا، رات کو رات دن کو دن۔ تو میں وہ دوسری بات کرنے والا ہوں نہیں۔ جہاں تک فارورڈ بلاک کی بات ہے، یہ فواد چودھری صاحب اور شیر افضل مروت نہیں بنا رہے، یہ عمران خان صاحب کے وہ چہیتے جو کمپرومائزڈ ان کے دائیں بائیں لوگ ہیں وہ بنوا رہے ہیں، اور ان کی ڈیوٹی میں شامل ہے کہ کچھ لوگوں کو اس طرح ذلیل کر کے نکالا جائے اور پھر وہ فارورڈ بلاک بنائیں، اور رہی صحیح جو کسر ہے پی ٹی آئی کی وہ بھی ختم ہو جائے، اور پی ٹی آئی ٹکڑے ہو جائے، اور پی ٹی آئی کے حصے بکھرے کرنے کی ڈیوٹی کچھ لوگوں کے سپرد ہے، اور وہ اپنی ڈیوٹی پوری طرح سے سر انجام دے رہے ہیں۔ اب فواد چودھری صاحب جیسا شخص، میں نے کل بھی کہا تھا کہ ایک وزڈم والا شخص ہے، جس کا ایک اپنا تعارف ہے، جو میڈیا مینجمنٹ جانتا ہے، جس کا ایک ایکسپیرینس ہے، جس کا ایک خاندانی ایک بیک گراؤنڈ ہے سیاست کے اندر، اور جو روایتی سیاست کا ایک اہم کھلاڑی ہے۔ اچھا، ایسا روایتی، ایسا ایکسپیرینس، ایسا بندہ، اور اٹھا کے کسی کو تھپڑ مار دیا اور پہلی بار، مطلب یہ کوئی بندہ بدتمیزی کرے گا تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے گلے میں ہاتھ ڈالے گا؟ وہ اگر اس کو کہے گا کہ تم غدار ہو، فلانے ہو، تم یہ ہو، تو وہ اس کے جواب میں کسی عزت دار بندے کو آپ کہیں گے تو وہ کیا کہے گا؟ مطلب ان کو یہ پہلا ایک اکیلے یہ تو نہیں ہے جو ان کو یہ کہہ رہے ہوں گے؟ اس سے پہلے کیا تھا؟ بڑے لوگ کہتے کوئی بتانا کس کس کو مارا؟ سوشل میڈیا میری مدد لے لے، میں بتا دیتا ہوں۔ ایک ہمارے صحافی بھائی کو انہوں نے مارا تھا، 2 صحافی بھائیوں کو
सर इब्राहिम को और दूसरे उनको जिनको आप जो आपके दोस्त हैं मैं आपकी आपके मदद कर दोस्त दूं। हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो वो खरा बशीर लुकमान साहब को मारा जी था। जी जो खरा आदमी होता है ना, दिल से जो साफ आदमी होता है वो रिएक्ट करता है। अब शहीन साहब ने उनसे कोई बातें की, वो बेचारे जब्त नहीं कर सके और उन्होंने थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ बुरी बात है, मैं थप्पड़ को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन लड़ाई होगी दो इंडिविजुअल्स के दरमियान। अब पूरी पार्टी खड़ी होगी शोएब शहीन के साथ, उन्होंने कहा जी ये थप्पड़ पीटीआई को पड़ा है, यानी शोएब शहीन को नहीं पड़ा। अब फवाद चौधरी जिसने यार उसके इतना सेक्रीफाइस किया है, जेल काटी सर, आप आज भी उसका भाई जो है पीटीआई के लिए वकालतें कर रहा है, रोज बेचारा डेरा जेल पहुंचा होता है, खुद वो पहुंचे होते हैं, उनकी मिसेस पहुंची होती है। इस हालात के बावजूद उनको ये कह देना, तो वो जो लोग इस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं, जो मौजूदा क़यादत है, जिनको उन्होंने कहा कि ये सियासी कमेटी नहीं है, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये सियासी कमेटी पीटीआई की नहीं है, ये मनी लॉन्ड्रिंग कमेटी है, ये पैसे बना रहे हैं। कि वो उठते हैं और थप्पड़ मार देते हैं। देखिए, आप उनको दीवार के साथ लगा रहे हैं, आप उनकी कुर्बानियों को एक्नॉलेज नहीं कर रहे। जिस शख्स ने अपनी सारी सियासी तौर पे सारा कुछ बेचारे ने कर करा के उस खातिर उसने पीपल्स पार्टी छोड़ी, उसने सारी पार्टियों को खत्म करके के कहने पे एक पार्टी के परडे के अंदर पड़ा, तो वहां पे आप उनके लिए स्पेस खत्म कर रहे हैं, तो वो क्या करें, वो कहां जाएंगे? तो अब फवाद चौधरी साहब जैसे लोगों की भी अगर कदर नहीं पीटीआई के अंदर, तो पीटीआई के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनना एक नेचुरल अमल है, एक फितरी अमल है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगी कि पीटीआई के अंदर एक बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। और ये मैं बनाने वालों को कसूरवार कम, और जो लोग पार्टी से ऐसे लोगों को निकाल रहे हैं उनको मैं ज्यादा जिम्मेदार करार दे रहा हूं। और इमरान खान साहब के अपने रवैये को समझ रहा हूं कि उनको ऐसे मौके के ऊपर, जब वो लड़ाई के फेज के अंदर है गवर्नमेंट के साथ, उनको अपने इस तरह के साथियों को उठा के बाहर नहीं फेंकना चाहिए। अब शेर अफजल मरवत साहब असेंबली के अंदर भी टफ टाइम देंगे, बाहर भी टफ टाइम देंगे, मीडिया के अंदर भी देंगे, और सारा दिन सारी सूरत हाल शेर अफजल मरवत के गिर्द घूमेगी, और पीटीआई को समझ आ जाएगी कि उन्होंने ये क्या गलती की है। और मैं अगेन कहूंगा कि पीटीआई का दुश्मन शायद कुछ ना बिगाड़ सके, ये खुद ही अपना बेड़ा गर्क करने के लिए वैसे एक बात तो है राणा साहब, फवाद चौधरी साहब, ही इज अ सीजनल पॉलिटिशियन, नो डाउट अबाउट इट। वो इंटरफेयर क्यों, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या तो करते ही ना, आरिया हमजा ने नहीं की ना, यास्मीन राशिद ने नहीं की ना, इनसे ज्यादा तो खवातीन डटी रही हैं। फिर वो सनम जावेद कल की आई बच्ची डटी रही है ना। अब इनके अपने स्टेक थे, ही हैज टू मैनेज हिज ऑन पर्सनल थिंग्स, जो कि उन्होंने मैनेज करनी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चीजों को क्यों इतना इंटरफेयर कर रहे हैं? नहीं देखें, बहरहाल इसका तो जवाब फवाद साहब देंगे, लेकिन मैं इतना नहीं, आप भी दे सकते आप फहम रखते हैं, आप फहम रखते इसमें अर्ज ये करता बड़ा घुमा के सवाल लाइए। सबसे पहले तो एक चीज जुल्फकार ने कहा है कि जो दिल के खरे होते हैं वो जरा हाथ छूटो दे, तो पाइंदरा मेरे तो नेड़े ही दूर रहना है, मैं भी बहुत दिल का खरा हूं, ठीक है ना, कोई शिकायत बन जाए। देखें, हर शख्स की एक लिमिट होती है, ये कीज उठा के, ठीक है ना, ब्रेक के अंदर हर शख्स की एक लिमिट होती है ना, हर शख्स एक हद तक प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। आप इस बात पे तो बड़े बोल रहे हैं कि जी कि उन्होंने प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया, हम प्रेशर पे कभी बात नहीं करते कि प्रेशर क्यों होता है, क्यों आता है, कहां से आता है, किसकी तरफ से आता है, इस पे कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि पैर जल जाएंगे, पर जलते हैं वहां पे। तो हम ये बात कर सकते हैं कि जी वो प्रेशर किसी ने क्यों नहीं ले सका, ठीक है ना। अगर हमने 1947 से अब तक, अंगूर खट्टे होते हैं, नहीं अंगूर खट्टे भी होते हैं, खट्टे डायबिटिक लोगों के लिए फायदेमंद भी होते हैं, मीठे भी होते हैं, हाथ में मीठे भी आ जाते हैं। मेरा सवाल ये है, मैं तो, आपने मुझे लाके किसी और तरफ खड़ा कर दिया कि ये प्रेशर पड़ते क्यों है भाई पॉलिटिशियंस के ऊपर। अगर फर्ज करें कि फवाद चौधरी जैसा एक कैलिबर का आदमी, उसे आप सारी रात एक बंद रखें, उसके इंसल्ट करें, उसके बच्चों के सामने उसकी वो करें, तो हर शख्स की एक लिमिट है ना, ठीक है। जब मुशर्रफ जमशेद चीमा वो आज वो फिर खड़ी है पीटीआई के साथ, वो उनके साथ जो कुछ हुई वो आने वाले वक्त का भी बताएगा आपको। तो मेरा तो सवाल ये कि ये ऐसा होता क्यों है, ये बदतरीन एक जेस्चर है हमारी सियासत के अंदर। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इससे देखें, फॉरवर्ड ब्लॉक की एक जी मैं उस तरफ आ रहा हूं। देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक बने 3 बन जाए, 4 बन जाए, ठीक है, जो फॉरवर्ड ब्लॉक इमरान खान के नाम से हटेगा वो निशान इबरत बन जाएगा, उसकी दास्तान भी ना होगी दास्तानों में। मैं ये पूछने लगी थी कि ये पीटीआई ही कहलाएगा, जाहिर है वो उसके बगैर उनका चारा नहीं ना। बाबे दी कुल्फी थे, बाबे दी फोटो होना जरूरी है,
ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕੁਲਫੀ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਦੀ फोटो हटा लो, जितनी मर्जी चंगी कुल्फी हो, कोई नहीं खरीदेगा। और बाबे की कुल्फी एक ही बिकती है, वो है इमरान खान, ठीक है ना, उसकी कुल्फी बिकनी है। और दूसरी बात ये कि एक बात याद रखें, ये जो हम कहते हैं ना इमरान खान के मशवरे देकर अंदर से ये कर रहे हैं, यार थोड़ा सा आप भी रैशनल होके, जुल्फकार राहत भी रैशनल होके सोचे। ये ब्रेक में सोचता है, ब्रेक में मुझे बहुत रैशनल होके बात करता है जी। यार एक शख्स को 2 साल से आपने कैद किया हुआ है, उसकी बीवी को कैद तन्हाई में रखा हुआ है, उनसे मुलाकात भी नहीं हुई, मुलाकात नहीं होने करने देते, ठीक है, उसकी बहनों को पर्चे हैं और उसके रिश्तेदारों को सजाएं और पर्चे हैं, ठीक है, उसको 2 साल से आप कह रहे हैं जी वो घर का खाना नहीं खा सकता, वो एक जी, उसे कभी आप कहते तन्हाई में डाल देते हैं, कभी किसी, यार एक इंसान है वो, और वो कोई चोर है, डकैत है, जेब को तरह है यार, वो हमारा प्राइड है। मैं मुझे कहने दे, ही इज अवर प्राइड। उसने पाकिस्तान का नाम हर प्लेटफॉर्म पे बुलंद किया है, उसके नाम के साथ मनी लॉन्ड्रर नहीं लिखा हुआ, उसके नाम के साथ खजाने को लूटने वाला नहीं लिखा हुआ, उसके नाम के साथ अपने बच्चों को नवाजने वाला नहीं लिखा हुआ। उसने अपने सारे पैसे जो है ना जमा पूंजी शौकत खानम के नाम लगाई है। तो ठीक है, सिस्टम से टकरा के आप नहीं जीत सकते। इमरान खान को यह बात समझनी चाहिए कि पाकिस्तान में आप सिस्टम से टकरा के नहीं जीत सकते। सिस्टम इज एवरीथिंग, और जो सिस्टम में रहता है उसकी बल्ले बल्ले हो जाती है। आज मरियम साहबा को देख लो, क्या बात है जनाब, वो तो आज बल्ले बल्ले थी क्योंकि वो सिस्टम का हिस्सा है। सिस्टम का हिस्सा नहीं है वो, सिस्टम चला रही हैं वो। देखिए ठीक हो गया जी, हमारे साथ फवाद चौधरी साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। इसार राना साहब और जुल्फिकार राहत साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपके फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से हम जानना चाहेंगे, और ये क्या पीटीआई की ये छतरी तले ही बनेगा, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो खिचड़ी बन रही है, मैं चाहूंगी उस पर भी थोड़ी उनसे पहले ये पूछ लें कि बना भी रहे हैं कि नहीं, कि उन्होंने खाते पाई जा रहे हो मुफद्दल हुसैन, उन्होंने तो पूछ लो पहला। जी जी सर। हाँ नहीं, मैं बाकी खुद ही परेशान हूँ। फॉरवर्ड ब्लॉक कौन सा? सर ये खबरें आपके नाम से मंसूब है कि आप शेर अफजल मरवत और आप सब मिलके कोई एक फॉरवर्ड ब्लॉग बना रहे हैं। खबर आई है सर, ये मीडिया में खबर आई है। ये जुल्फिकार राहत मीडिया को 150 चैनल है, को 500 अखबार है, को एक आध कोट करे ना कि कहाँ पे आई है ये। नहीं, फैसल वोडा साहब ने कोई बात कही है कहाँ पे कि पीटीआई के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, तो फैसल वोडा से पूछे ना, हमारा क्या ताल्लुक है। अच्छा, मैं ये इस तरह एक मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि चौधरी साहब, आप नहीं समझते कि इमरान खान के जेल में इतना अरसा रहने की वजह एक बाहर की क्यादत भी है, जो उस तरह इमरान खान का नैरेटिव और अवाम के साथ उसे एंगेज ही नहीं कर पाई, जिसकी वजह से ये इतना लंबा सफर हो गया। और अब क्या ऐसा नहीं लगता कि गेम हाथों से निकल गई है? राना साहब देखिए, वजह तो जाहिर है एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत है, और होता यह है कि आप हमेशा जब बनाया जाता है ना एस्टैब्लिशमेंट, एक एलिमिनेशन पॉलिसी बनाती है और एक बिल्ड पॉलिसी बनाती है। सो उन्होंने किया ये कि हम जैसे लोगों को, असद उमर, परवेज खट्टक, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद, इजाज चौधरी, यास्मीन, हम सबको उन्होंने एलिमिनेट किया, और उसके साथ उन्होंने बिल्ड किया ये सलमान अकरम राजा, ये अपना शेख वकास अकरम, रऊफ हसन टाइप, गौहर, जिनका यानी कोई वर्थ ना हो, कंट्रोल में रहे मामला। तो ये एलिमिनेशन और बिल्ड जो पॉलिसी है ये इकट्ठी चलती है। अब इन्होंने जब चूंकि खान साहब तक एक्सेस उनको दिया, उन्होंने उनको वकीलों को जो है वो पार्टी पकड़ा दी, उसके बाद पाकिस्तान में जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है पॉलिटिक्स का, वो खौफनाक है, क्योंकि पीटीआई का काडर खत्म हो गया, अब इमरान खान है और लोग हैं, दरमियान में पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती। तो जब आप कहते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक कोई बना लेगा या कुछ कर लेगा, वो इसलिए स्टूपिड बात है कि पार्टी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये तो इमरान खान है जिसके साथ लोग हैं, पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो बंदूक है या जो एस्टैब्लिशमेंट है वो उसके पास जो है वो फिजिकल पावर है। इट्स फिजिकल पावर वर्सेस पॉपुलैरिटी, और वो उसका हल कोई हो नहीं रहा।
and Pakistan is going down and down. Sir, do you اور think PTI کی ابھی کوئی سولوشن نکالنے کے لیے کسی طرف سے کوئی سیریسنس شو ہو رہی ہے؟ کوئی آپ کو حل ابھی کوئی اپ کمنگ منتھس میں جیسے یہ گرینڈ الائنس بنانے کے لیے پلان کیا جا رہا ہے رمضان کے بعد، کیا یہ لوگ سیریس ہے یا جو خط لکھے جا رہے ہیں ان کی جانب سے، عمران خان کی جانب سے، ان خطوں کے ذریعے کوئی ایک سیریسنس شو ہوگی طاقتور حلقوں سے؟ دیکھو پرابلم کیا ہے، پرابلم یہ ہے کہ آپ میرے سے صلح کا تب سوچیں گی جب آپ کو لگے گا کہ میں آپ کے لیے خطرناک ہوں، اور یہ اگر سوچ یہ ہے کہ میں نے ہر چیز فتح کر لی ہے، میں نے جوڈیشری بھی فتح کر لی ہے، الیکشن کمیشن بھی فتح کر لیا ہے، الیکشن کے نتیجے آئے ہیں وہ بھی ہم نے اڑا دیے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں سمپل بات ہے، وہ اس وقت پی ٹی آئی کا جو فیلئر ہے وہ یہ صرف یہ ہے کہ وہ کوئی ان کے لیے دباؤ کریٹ نہیں کر سکے ابھی تک. کبھی وہ کہہ دیتے ہیں جی ٹرمپ یہ کر دے گا، کبھی وہ یہ کہہ دیتے ہیں. یہ جو گرینڈ الائنس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ رانا صاحب اور اپنا راحت آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے کہ میں جب جیل میں تھا تو میں کہنا شروع ہوا کہ گرینڈ الائنس بننا چاہیے، اور یہ جب خان صاحب سے جب میں ملا ہوں تو میں نے انہیں کہا جی کہ یہ نہیں، آپ ہم پہلے اسٹیبلشمنٹ سے لڑ رہے ہیں، پھر حکومتی پارٹیوں سے لڑ رہے ہیں، اب ہم نے فیصلہ کیا یہ کافی نہیں ہے، ساری اپوزیشن پارٹیوں سے بھی ہم نے لڑنا ہے، تو اس طرح تو نہیں آپ کر سکتے. اچھا فواد صاحب، پھر ہم نے یہ گرینڈ لائن یہ جس طرح پی ٹی آئی کی موجودہ جو قیادت اپنے آپ کو سمجھتی ہے، بڑے ترم خان سمجھتے ہیں، اور وہ کسی کو غدار اور کسی کو کسی طرح کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں، اور حالت ان کی وہی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا. اگر وہ اس طرح کا رویہ رکھیں گے تو کیا یہ عمران خان کے ساتھ وہ دوستی کر رہے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کی رہی سہی جو کسر ہے وہ بھی وہ تباہی بربادی کر رہے ہیں کہ وہ جو لوگ کوئی کام کر سکتے ہیں وہ کسی کو بیٹھے بیٹھے میٹنگ میں غدار ڈکلیئر کر دیتے ہیں، کسی کو پارٹی کا دشمن ڈکلیئر کر دیتے ہیں. تو یہ روایت جیل سے چل رہی ہے یا باہر سے کوئی کام ہو رہا ہے؟ لائن ڈراپ ہو گیا آئی تھنک. فواد چودھری صاحب اگر آپ سن کیا ہے. جی مجھے تو آ رہی ہے. عمران خان نے لوگوں کو اپوائنٹ کیا ہے، انہوں نے اپوائنٹ اس طرح سے کیا ہے کہ یہ وکیل ہے اور ان کی جو ہے وہ جو لیگل انپٹ ہے وہ چاہیے. اب میں نے خان صاحب سے اس دن بھی یہ کہا ہے کہ کیا آپ جیل میں جو ہے وہ اپنے کیسوں کی وجہ سے ہیں یا اپنی سیاست کی وجہ سے ہیں؟ یس. دیکھیں عمران خان کے اوپر کوئی کیس ہے ہی نہیں، یہ تو سٹوپڈ کیس ہیں جن کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. پالیٹکس از دا ریئل گیم جس کے اوپر عمران خان نے توجہ دینی ہے. آپ دیکھیں نا پرابلم اس وقت، آپ مثلا آج کی پریس کانفرنس، آج آپ اخبار دیکھیں، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہیز شون کنسرن کہ عدالتیں ان کے کیسز ڈیسائیڈ کیوں نہیں کر رہی. او بھائی، ان عدالتوں سے آپ کیسز، کون بیوقوف ان عدالتوں سے کیس ڈیسائیڈ کروانا چاہے گا؟ پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی تو یہ ہونی چاہیے کہ جج ان کے کیس بھول جائیں، ابھی لگائیں ہی نہ، اور جب تک آپ پالیٹکس پہ کنٹرول نہیں کرتے، ڈونٹ گو ٹو دیز ججز. اچھا صاحب مجھے بتائیے، مریم بہت ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے اتنے ریکارڈ افتتاح کر دیے ہیں. ویسے پنجاب ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے، یہ اتنے پیسے تو چلے، لیکن یہ کہ اچانک ان میں اتنا اگریشن جو ہے، تو کیا یہ سسٹم طے کر گیا کہ عمران کا قصہ ماضی ہو گیا اور اب مریم نیکسٹ پرائم منسٹر ہوں گے اور ان کو ذرا گروم کیا جائے؟ رانا صاحب، آپ کتنے سالوں سے یہ پالیٹکس پاکستان کی دیکھ رہے ہیں. اب آپ، میں، راحت، ہم لوگ جو ہیں دیکھیں سالوں سے ہم تجزیہ ہی کر رہے ہیں. روز ہم نے لوگوں کو آتے دیکھا ہے، جاتے دیکھا ہے. جو بھی آتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے آتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی ایسا آیا ہو جو اس کو پتا ہو میں نے جانا بھی ہے؟ تو یہ لوگ تو ہمیشہ کے لیے آتے ہیں. انہوں نے بھی ابھی یہ $200 ملین کا لون ہے اس کا ورلڈ بینک کا، اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. یہ ہم نے واپس بھی کرنا ہے کل، لیکن چونکہ مریم نے واپس نہیں کرنا تو اس کو ایسے خرچ ہو رہا ہے جیسے کہ باپ کا مال ہے. 8,000 کیک بنوا لو، وہ فلانی جگہ کے اوپر یہ کر دو، یہ کر دو. یہ تو تماشا لگا ہوا ہے. بٹ یہ پاکستان کا ایک بڑا امپورٹنٹ آئی وڈ سے اسٹرکچرل ایشو ہے، وہ ہم ٹھیک تو کر نہیں رہے. لیکن اس وقت جو پالیٹکس میں چیلنج ہے، پی ٹی آئی نے جو بنانا ہے، اس کے لیے گرینڈ الائنس بننا بڑا ضروری ہے. مولانا فضل الرحمان کے جو کنسرنز ہیں وہ بڑے جینون ہیں، ان کو دور کرنا چاہیے. اور ان کا سب سے بڑا کنسرن یہی ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی اس لیڈرشپ کے ساتھ آپ کا اور شعیب شاہین کا جو ایشو چل رہا ہے اس پر ڈو یو وانا ہائی لائٹ اینی تھنگ؟ لیکن یہ بات یہ ہے کہ ہونا تو نہیں چاہیے تھا. اوبویسلی کسی کو فزیکلی بندہ
کیا اس کو جسٹیفائی کیا بندہ کرے. لیکن آپ صرف ان کی کل کی پریس ریلیز اٹھا کے دیکھیں, مطلب اب ہر پولیٹیکل کمیٹی بجائے اس کے کہ کوئی گورنمنٹ کے اوپر بات کرے, عمران خان کی ریلیز پہ بات کرے, وہ ہر پولیٹیکل کمیٹی میرے پہ ہو رہی ہے. تو بندہ عجیب و غریب ان کا جو ہے وہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ خراب ہوا ہوا ہے. اور سیزنل پولیٹیشین, اور آپ میڈیا مینجمنٹ میں یو آر این ایکسپرٹ, اور کوئی اتنی جلدی آپ کا ٹیمپر لوز یا بریک نہیں کر سکتا. آئی ایم 100% شیور اباؤٹ دیٹ. لیکن آئی تھنک آپ جیسے لوگوں کو اپ فرنٹ آ کر ایک مثال بننا چاہیے, کریکٹرسٹک بھی, اور ایسے نارمز پیدا کرنے چاہیے. ٹالرنس لیول کم ہے. بٹ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. مجھے جانا ہے بریک پر. ویورز, لیٹس ہیو اے بریک. بریک کے بعد خوش آمدید مریم نواز, جو کہ اڈیالہ والوں کو یاد کر رہی ہیں اور خطوں پر بات کر رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی منتیں کر رہے ہیں کہ مجھے نکال لو, خدا کا واسطہ ہے مجھے بچا لو. یہ سب کچھ ہم نے پہلے بھی آپ کو سنایا ہے. راحت صاحب, یہ ایک دم سے مریم نواز کو کیا ہوا ہے؟ پہلے جب الیکشن کیمپین کر رہی تھی تب وہ اس طرح کی باتیں کرتی تھی, اور وہ اس طرح کی عمران خان کا نام لے کر باتیں کرتی تھی اور ان پر پوری الیکشن کیمپین کرتی تھی. لیکن وہ چیف منسٹر بن گئی, اس کے بعد انہوں نے کوئی, یہ جتنی 1 سال رہی ہیں, انہوں نے کوئی اس قسم کے کوئی جلسے میں کوئی بات نہیں کی, نہ میڈیا میں کوئی اپنی پریزنس میں کوئی بات کی ہے. یہ اب کوئی الیکشنز پھر آنے والے ہیں جو جلسے کر رہی ہیں اور یہ اس قسم کی نیریٹو بنا رہی ہیں. ہر دور میں حکومت اور اپوزیشن کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. اس میں حکومت کہتی ہے جی ہم بہت کام کر رہی ہیں, اور اپوزیشن اس کو ایکسپوز کر رہی ہوتی ہے. اگر غیر جانبدار تجزیہ کرے اور اس کا تھوڑا سا جائزہ لیں کہ پی ٹی آئی نے 1 سال کی حکومت میں کیا کھویا اور کیا پایا, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بہت زیادہ مومنٹم گورنمنٹ کے خلاف اس طرح سے سڑکوں کے اوپر نہیں بنا سکے اور کچھ اچیو نہیں کر سکے. مثال کے طور پہ نہ وہ اپوزیشن پارٹیوں کو اکٹھا کر سکے, نہ گورنمنٹ کو کوئی اس طرح اسمبلی کے اندر ٹف ٹائم دے سکے, اور نہ سڑکوں کے اوپر گورنمنٹ کو ڈیفینسو پوزیشن میں لا سکے. تو گورنمنٹ ہر جگہ پہ اگریسو نظر آئی. اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مریم صاحبہ یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. شہباز شریف صاحب الگ سے اپنی کامیابیوں کی ایک پوری گردان سناتے ہیں, اور دوسری طرف اگر ہلکی سی اگر نظر دوڑائیں, آپ کھڑی کر دی نہ, آپ نے جلسے کی اجازت دی ہے, چھاپے مار مار کے لوگوں کو اٹھوا لیا ہے, اور اس کے بعد تو ہے وہ, میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ایسا نہیں ہوا. وہ گورنمنٹ اس وقت یہ کرتی ہے, گورنمنٹ جب اپنی طاقت میں ہوتی ہے. جو گورنمنٹ جب ویک ہوتی ہے تو وہ ڈیفینسو پوزیشن میں ہوتی ہے, ترلے منتیں کر رہی ہوتی ہے, اس کا مطلب ہے گورنمنٹ مومنٹم میں قائم ہے. اب آئی ایم ایف سے گورنمنٹ کو ایکسپورٹ مل گئی, نمبر 1. ورلڈ بینک سے لمبی چوڑی, کل بھی ہم نے بات کی, ایکسپورٹ مل گئی. امریکہ کا بظاہر ٹلٹ جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف, عمران خان کی طرف کم اور گورنمنٹ کی طرف زیادہ نظر آ رہا ہے. چین ایک جو ہمارا اتحادی ہے اس کی طرف سے بھی انڈیکیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ نظر آ رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ ایک بہت اہم سیگمنٹ ہے, وہ گورنمنٹ کے ساتھ پوری طرح سے کھڑی نظر آتی ہے. سعودی عرب کا آپ دیکھ سکتی ہیں کہ وہ نظر آتا ہے. 100 کے لگ بھگ 1 سال کے اندر پروجیکٹس ہیں جس کا مریم صاحبہ نے افتتاح کیا ہے. یوتھ انگیجمنٹ پہ اچھا خاصا گورنمنٹ جو ہے وہ کام کر رہی ہے. میڈیا کا ایک بہت بڑا شکوہ تھا پی ٹی آئی سے, اب موجودہ گورنمنٹ سارا میڈیا کو ساتھ لے کے چل رہی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے سیکٹرز ایسے ہیں جس کو گورنمنٹ موجودہ نے یہ جو میڈیا کو ساتھ لے کر چل رہی ہے نا, یہ دیٹ از ڈیبیٹیبل. میں بعد میں آپ کے پاس آتی, پی ٹی آئی کو, بانی پی ٹی آئی کو سر پہ اٹھا کے اب سارے لوگ لے کے آتے ہیں. جب وہ تشریف لائے تو آتے میڈیا کو, میڈیا کیسی تیسی شروع کر دی. ٹھیک ہے, یہ پیکا ایک تو ہم اس میں نہیں نہ آیا, اس دور میں بھی, اس دور میں آیا تھا, ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ابھی جو کیا ہے وہ انہوں نے تھوڑی کیا, وہ پی ٹی آئی والے کر کے چلے گئے تھے. رانا صاحب, یہ مریم نواز صاحبہ یہ جو کچھ فرما رہی ہیں, آپ کل تو ان کی بڑی تعریفیں کر رہے تھے, مجھے لگتا ہے نظر آپ کی لگ گئی ہے آج ان کو. آج انہوں نے کہا عمران خان تو خطوں میں واسطے دے رہا ہے. جیسا کیا انہوں نے. دو چیزیں اس جواب کے نا. اچھا, میں چاہوں گا کہ میں دونوں چیزوں کو ایڈریس کروں ٹائملی. پہلی 1 سال کی کارکردگی پی ٹی آئی کی انہوں نے بتائی ناکام. پی ٹی آئی کی جو ان کی اسٹریٹجی ٹھیک نہیں تھی, بندے نہیں نکل سکے. 1 سال میں اس حکومت نے کیا کیا؟ سب سے پہلے آپ نے ایک پارلیمنٹ کو ربر سٹیمپ بنا دیا, جس میں لوگوں کو زبردستی آپ نے فورس کیا کہ آپ کی مرضی کے ووٹ تھی, ٹھیک ہے, 26ویں ترمیم اور دیگر میں, اور وہ ایک پارلیمنٹ ربر سٹیمپ بن گئی. دوسرے نمبر پہ آپ نے عدلیہ کا بیڑا غرق کیا, اور دنیا بھر میں آج پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ بدنام ترین عدلیہ ہے. نمبر 3, آپ نے کہا جی ہم تو لے کے آ رہے ہیں وہ
स्टील मिल और ये और वो सारी चीजों के लिए प्राइवेटाइज करने ए पे ਤੁਹਾਡੇ मेहनत 2 साल दी कि 10 अरब रुपए PIA के लगे, स्टील मिल वहीं पड़ी हुई है, वो जीरो हो गया। अच्छा आगे एक मिनट है जी, आपने बोले इलेक्शन कमीशन, आप उसकी रिपोर्ट पढ़ लें, वो जो क्या नाम है जो अभी 4 दिन पहले आई है, जिसमें हमारे एक दोस्त को बेचारे को 15-20 दिन के लिए ऑफर भी कर दिया गया रिपोर्ट को पढ़ने के लिए, पतंग की है ना। तो इससे आपको अंदाजा है 1 साल में क्या हुआ। अब आए मरियम साहिबा की तरफ। देखिए शहबाज शरीफ थे स्पीड, मोहसिन नकवी साहब थे सुपर स्पीड, अच्छा, और माशाल्लाह मरियम साहिबा ओवर स्पीड। हाँ, और अच्छा। मुझे डर ये है कि वो मोटरवे जो उनके अब्बू ने बनाई थी कहीं उनका चलान ना हो जाए उससे। अच्छा, हेलमेट पहन के चलाएंगे तो नहीं होगा? नहीं, वो कौन सी मोटरसाइकिल चला रही है, वो हुकूमत चला रही है, लेकिन वो ओवर स्पीड चला रही है और इतनी अन्नेवाह चलाई जा रही है माशाल्लाह। और मैं 2 चीजें देखिए, जो मिन्नतें होती है ना, वो ओपन खतों में नहीं होती, और खतों के अंदर जो जबान इस्तेमाल की जा रही है खान साहब की तरफ से, वो मिन्नतों वाली नहीं है, वो तो मजीद लड़ाई वाली है। ठीक है, आज जो उन्होंने साफियों से गुफ्तगू करते हुए जो मैसेजेस दिए, वो किसी तरह सुलह के मैसेज नहीं है, वो फिर लड़ाई के मैसेज हैं। ठीक है, और दूसरी बात, आखिरी बात यह है कि देखें मरियम साहिबा ने कहा कि अल्लाह नाइंसाफी नहीं करता। ठीक है, मैं इस लम्हे मौजूद में सच्चे दिल से अपने रब से दुआ करता हूं कि अल्लाह मियां उन सब के साथ इंसाफ कर जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। अल्लाह ताला उन सब के साथ इंसाफ कर जिन्होंने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इन 24 करोड़ लोगों के बच्चों के मुस्तकबिल तबाह किए। उन सब के साथ इंसाफ कर जिन्होंने इस मुल्क के दौलत को लूट के बाहर ले जाके कोठे बंगले बनाए, अपने बिजनेस बनाए, उनके साथ इंसाफ कर। अल्लाह मियां उन सब के साथ इंसाफ कर जिन्होंने इन गरीब लोगों के हकूक छीने, इन गरीब लोगों के मुंह से निवाले छीने, इन गरीब लोगों के ख्वाब छीने, और उसके बाद खुद खरबोपति होके और बाहर बड़े बड़े बंगले बना के, कोठियां बना के बैठ गए और कहा कि हमारे तो दूर क्या बाहर क्या, पाकिस्तान में कुछ नहीं है। अल्लाह उन सब से इंसाफ कर। वैसे तो मैंने कभी अल्लाह से इंसाफ नहीं मांगा, हम उसके इंसाफ पे पूरे नहीं उतर सकते, ठीक है ना, मैं उससे रहम मांगता हूं अगर वो, लेकिन मरियम साहिबा इंसाफ की बात करिए तो मैं ये हाथ फैला के ऑन एयर हाथ फैला के मैं दुआ करता हूं, अल्लाह मैं तुझसे इंसाफ मांगता हूं इस मुल्क के उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, जिन्होंने इस मुल्क को मकरूज किया, जिन्होंने इस मुल्क को भूखा बनाया, जिन्होंने इस मुल्क के अंदर बेरोजगारी बढ़ाई। ठीक हो गया राना साहब, ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया, पानी सुलह कर लो फिर तक आ गई तो सुलह कर लो। लेकिन वो मरियम नवाज साहिबा जो आज कह रही है, मैं आपकी बात आ गई है, वो कह रही है कि इसके अपने बच्चे तो बाहर रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खा रहे हैं और यहाँ के बच्चों को कहता है बाहर निकलो, और बाहर निकल के उसको कहता है कि फसाद फैलाओ, और जिनके बच्चों ने पासपोर्ट फाड़ के फेंक दिया कि हम तो नहीं जा रहे पाकिस्तान। अच्छा, बात सिर्फ इसकी नहीं है, इमरान खान की नहीं है, बात सारी इस एलीट क्लास की है। ये सबके बच्चे मजे में है और कौम के बच्चे सड़कों पे हैं। सही बात है। देखिए, कमरों के अंदर, एसी कमरों के अंदर कुछ है, बड़े बड़े महलों के अंदर कुछ है, और सड़क की हकीकत कुछ है। सड़क की हकीकत इसलिए मुख्तलिफ है कि सड़क पे अवाम होते हैं और बड़े बड़े महलों में इशराफिया होती है, तो इशराफिया का आम अवाम से जितना को ताल्लुक होता है वो आप समझ ही सकती हैं। हाँ। तो अगर इस पे बात की जाए कि कौन क्या है, तो सच इतना मुश्किल है और इतना तलख है, वो शायद किसी से भी बर्दाश्त नहीं होगा। बोल दे यार। उसमें मेरे हीरो, हमेशा ही बोलता हूँ, तुम मेरे हीरो, तुम मेरे आइडियल हो, आपको पता है, तुम मेरे अरस्तु हो, सुकरात हो। आज सच बोल दो यार, इस मुल्क इसको मुल्क को तबाह करने वाले कौन लोग हैं? आज मैं तुमसे सच सुनना चाहता हूं। सारी एलीट क्लास और पॉलिटिशियंस, तमाम पार्टीज के जो हजरात हैं और ब्यूरोक्रेसी और हर वो शख्स जो बाइख्तियार रहा, और उस सब ने मिलकर इस मुल्क को माले गनीमत की तरह लूटा, और उसमें मीडिया भी शामिल है। की जगह मैं आपसे उसमें मीडिया भी शामिल है। यार कोई 5 लुटेरों के नाम बता दो टॉप के, आप समझ लीजिए 5 लुटेरे जिन्होंने मुल्क को लूटा। मैं चाह रहा हूं आज मेरे देखने वाले भी खुश हो जाएं कि आज जुल्फिकार राहत ने सच की नदियां बहा दी हैं। ये फिर आपकी बात ठीक है। देखिए, सिर्फ 5 नहीं है, इस पे तो 500 के नाम आते हैं। बता दो टॉप 5 जो आपके माइंड में है। टॉप 5 का पता है, ये नाम ना ले, जरा जाती हो जाएगी। मैं ओवरऑल सबको कह रहा हूँ, देखिए, बजाय इसके किसी की जात पे बात की जाए, इस सिस्टम का मातम करने की
जरूरत ये है। इससे बड़ा मातम क्या होगा कि हम सच नहीं बोल सकते? हम इससे सच बड़ा बोल मातम तो क्या होगा कि रहे हम हैं, कैसी बातें कर रहे नाम हैं? लो, मैं तो बोल रहा हूँ ये नाम लो, फिर नाम और लो, ये इशराफिया जो सच इस बोलो, मुल्क की नाम लो, दुश्मन है। आधा सच ना बोलो, नाम लो भाई मैं पूरा सच बोल रहा हूँ कि इशराफिया इस मुल्क की दुश्मन है। मैं तो कहता हूँ महलों की हकीकत और है, सड़क की हकीकत और है। सही बात है। सड़क पे अवाम रहते हैं, मेरा महलों सवाल में वही इशराफिया है, मेरा रहती है। सवाल वही है, 5 नाम ले लो जो मुल्क को लूटने वाले मैं- 5 राणा नाम साहब लोगों ने के तो नाम नवाज लो। शरीफ, शहबाज आपकी शरीफ, मर्जी मरियम का- नवाज, शहबाज नहीं, शरीफ, मैं अपने इनका पल्ले से नहीं कहूंगा, हाँ, मुझे पता, आपने इनका नाम ले एक लिया। लफ्ज पल्ले से नहीं कहूंगा। हाँ, 5 आप मुझे कह पता रहे हैं, है। एक एक पार्टी के अंदर 500 बंदा है। ओ मैं टॉप 5 की बात 5 कर के रहा हूं, नाम टॉप लेंगे 5 की आप। बात कर रहा हूं। हाँ, ठीक हो गया। पीटीआई के अंदर भी है, नूनली के अंदर भी है, पीपल्स पार्टी के अंदर भी है, महकमे चलो, के ब्रेक अंदर लें, भी है, छोड़िए। ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी। किस किस का नाम ले? छोड़े इस डिबेट को, छोड़ दे, ठीक हो गया। नहीं नहीं वो लेंगे हम। तुसी भी ला लो जरा। हम ब्रेक में जाके ब्रेक ही ले नाम लेना। सुनते हैं जी राहत साहब से कि कौन से टॉप 5 ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुल्क को लूट लूट के खाया। मुझे जाना, तय नहीं हो रहा। हम नीचे से स्टार्ट करेंगे फाइव के ले ना, रहे हम हैं। नीचे से हाँ, स्टार्ट करेंगे। चलें। ब्रेक में जाना स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशआमदीद। शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं अब जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो निकाले गए हैं, कल तो वैसे वाडा साहब कह चुके थे कि वो मेरी पार्टी की है, अब उनकी पार्टी कौन सी है ये डिसाइड होना अभी बाकी है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि गौर कीजिएगा राज साहब, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ को गलत निकाला है जो उन्होंने निकाला है बेटे को तनख्वाह लेने से, और अभी जो इमरान खान अंदर हैं अभी उनको जो बाहर निकालना है, अभी उनसे मुलाकात होनी है जिसमें उन्होंने रिजर्वेशंस अपने रखने हैं। लेकिन वो कहते हैं कि छोड़ो इसको, मैं तो लुगनत भी नहीं भेजता कि जो कुछ हो चुका है अब इस पे क्या मिलना है, क्या करना है, और ये जो कानों के कच्चे हैं और ये जो गुफ्तगू सुन के मुझे निकाला गया है, अगर पहले निकाला गया था तो वो क्यों गलत था, अगर अब निकाला गया है तो ये क्यों सही है, इस किस्म की वो कोई गुफ्तगू फरमा रहे थे मरवत साहब। राहत साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन इट कि वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं गलत निकाला गया? शेर अफजल मरवत साहब ने असेंबली में बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि जी मुझे क्यों निकाला। वो कहे मुझे क्यों, और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने भी यही सवाल किया था और उनको भी गलत निकाला गया था और मुझे भी गलत निकाला गया। लेकिन अगर अपनी सीट नहीं छोड़ो। और देखें नवाज शरीफ साहब का सब्र देखें कि उनकी कोई बददुआ ऐसी लगी है पीटीआई को कि पीटीआई वाले खुद कह रहे हैं कि उनको वो बेगना था। ये होता है, देखो अल्लाह का भी कानून है, कानून मुकाफात अमल है। इंसाफ ये है। चुप करके घर में बैठा हुआ है और गोइयां कहां से आ रही हैं? तौबा तौबा। शेर अफजल मरवत साहब गवाह बन गए हैं, दुनिया के अंदर गवाह बन गए हैं और कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब बेगुनाह थे। राणा साहब, ये होता है नेक मोमन लोगों का कि उन्होंने दुआ की है बस कि अल्लाह मियां मैं बेगुनाह था और मेरा इंसाफ कर दे दुनिया में, तो उनका दुनिया में इंसाफ हो गया। और गवाही कौन दे रहा है? शेर अफजल मरवत, जो उनके खिलाफ प्रोग्राम करता था। अब देखिए इस तरह के हालात के बाद नवाज शरीफ को कम से कम आपको और पूरी पीटीआई को ये नहीं कहना चाहिए कि वो करप्ट आदमी था और करप्शन की वजह से निकाला। अच्छा, लेकिन जिसको सादक और अमीन कहते थे भाईजान इमरान खान साहब, वो वाहद पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो कन्विक्ट हुए हैं करप्शन के ऊपर। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह लेने पे निकाला गया, वो करप्शन पे नहीं हुआ। तो अब देख लें सच सामने आई गया। वैसे ना इसकी बात को मैं एग्री करता हूँ कि अल्लाह ताला का एक अपना कानूनी निज़ाम है, कानून मुकाफात अमल है, मुकाफात अमल है कि 3 वक्त का वजीर आजम घर बैठ गया बकौल इसके, जुल्फकार राहत के घर बैठा हुआ है। ठीक है, इससे ज्यादा बड़ा इंतकाम कोई नहीं हो सकता किसी से कि वो चौथी दफा वजीर आजम बनने आया और घर बैठ गया। दुआ की, ठीक है ना, दुआ की कि अल्लाह में उनको घर बिठा दे। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा, तबीयत ठीक नहीं थी। चौथी दफा वजीर आजम बनते हुए ठीक थी। हाँ। अच्छा, तकरीर जब तैयार हुई थी तब भी ठीक थी, लेकिन जब वो पता चला कि आप दोनों जगह से हार गए फिर खराब हो गई। उनकी तबीयत खराब। अच्छा, मरवत की देखें, मैं आपको बताऊं, मरवत को अभी मैंने कल कहा था कि मरवत साहब वो उस खातून की तरह जिन्हें तलाक हो जाए तब भी अपने शौहर का पीछा नहीं छोड़ती, लेकिन अभी उन्हें तलाक बाइन नहीं हुई, 2 तलाकें हुई हैं, उन्हें 2 दफा निकाला गया है। अच्छा, तीसरी होगी जब तो फिर मिलने जाएंगे। हाँ, नहीं, हाँ, अगर उसमें हो गई फिर उन्हें हलाला करना पड़ेगा, सियासी हलाला, और उसके लिए वो तैयार है एक पार्टी वाउडा की, हलाला करके फिर वापसी रुजू कर सकते हैं पीटीआई को। में आएंगे ठीक जैसे है, वो तारीफें वो लाला किसी से भी कर लेगा, हलाला ही करना है। अच्छा। लेकिन असल चीज ये है कि ये मरवत जैसे लोग ना, ये भी कानून फितरत है। मैंने अशफाक साहब का पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि धोखा एक ऐसी चिड़िया है कि वो जब आप देते ना तो वो उड़ जाती है, पूरी दुनिया घूम के आके फिर आपके सामने खड़ी हो जाती है। ठीक है, आप एक्सपोज हो जाते हैं चाहे कुछ भी कर लें आप। मरवत आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रहे हैं। मुझे नहीं पता
ये इमरान खान जाने वो जाने, हो सकता है उनकी वापसी हो जाए, लेकिन जो कुछ बयानात उन्होंने बाहर निकल के दिए ओवरसीज पाकिस्तानियों को इमरान खान के हवाले से, कि इमरान खान कहता है यूं ना करो, जो बाद में झूठे साबित हुए, तो वो तो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रहे हैं। और वो अकेला नहीं है, आप इट पुटो जिन्हों पनो हिला ले गए, ठीक है ना। हर बंदा जो है, यहां मैं आपको लिख के दे दूं पीटीआई का, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी वो कहीं और कंप्रोमाइज हुआ है। वो सुबह कहीं बैठता है, शाम को रिपोर्ट कहीं जाके दे रहा होता है, लाइन कहीं से ले रहा होता है। और सिस्टम की यही ताकत है कि उन्होंने पाकिस्तान की सबसे मकबूल पार्टी और सबसे मकबूल लीडर को इस सतह के ऊपर वो कर दिया कि वो जेल में है, बिल्कुल बेबस हुआ है। उसकी पार्टी को आपने तितर बितर कर दिया, फारिग हो गया। मरियम साहिबा को आपने बैसाखियों के जरिए ऊपर हवाओं में आप ले गए। और मरियम ये क्यों चैलेंज कर रही है इमरान खान को? वो इसलिए कर रही है कि अब उन्होंने बकौल जुल्फकार के वजीर आजम बनना है, तो फिर वो चैलेंज उसको करे ना जिसका कद बहुत बड़ा हो। वो केपीके के वजीर आला को नहीं करेंगी, वो सिंध के वजीर आला को नहीं करेंगी, क्योंकि अब वो वजीर आजम के उम्मीदवार हैं। अच्छा। लेकिन फिर भी मैं गल दसा, क्या जी, इमरान खान तक पहुंचने के लिए कई सदियां चाहिए। इमरान खान जो लेजेंड भी हो, खूबसूरत भी हो, फातेह भी हो, बहादुर भी हो, मजबूत भी हो, लड़ाका भी हो, वो एक बड़ा लीडर भी हो, ये सारी क्वालिटीज एक वक्त में नहीं इकट्ठी हो सकती। बैसाखियों से आपके कद बड़े हो सकते हैं, लेकिन आप इमरान खान देखिए अक्लमंद भी हैं, वो खूबसूरत भी हैं, वो पूरे पंजाब को चला भी नहीं है, सबसे बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर भी है। बताए ना राहत साहब, आप क्वालिटीज गिनवाए, आप खामोश हो गए। मैं तो एक बात सिर्फ सोचता हूँ कभी कभी बैठ के, आप तो उनकी क्वालिटीज इमरान खान की सुन के आप तो सोच में पड़ गए। नहीं, क्वालिटीज तो सबकी गिनवाई जा सकती हैं और नेगेटिविटी भी होती है सब में। अच्छा, इंसान कुछ पॉजिटिविटी और कुछ नेगेटिविटी का मजमुआ होता है, किसी में नेगेटिविटी ज्यादा होती है, किसी में पॉजिटिविटी ज्यादा होती है। देखिए पीटीआई को बहुत सारे लोगों ने छोड़ा, फिजा सब ने करप्शन के इल्जाम लगाए, किसके ऊपर? बानी पीटीआई के ऊपर। अलीम खान से शुरू हो जाए जंगीर तरीन तक, जंगीर तरीन से शुरू हो जाए, सब ने कहा जी वो ये थे, घर का खर्चा मैं चलाता था, किसी ने कहा जी गाड़ी मैंने दी। अलीम खान साहब ऑन रिकॉर्ड है सारी चीज, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ तो कहा। ये करप्शन तो नहीं है, अपनी खुशी से करते थे। अब दूसरी तरफ देखते नवाज शरीफ को इतने लोगों ने छोड़ा, निसार अली खान, इरशाद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, एक लंबी लिस्ट है, लेकिन किसी एक बंदे ने ये नहीं कहा कि नवाज शरीफ ने फलां करप्शन की। कोई एक बयान दिखा दे रिकॉर्ड के ऊपर। अब सवाल ये है कि अगर बानी पीटीआई के या पीटीआई के हर छोड़ने वाला बंदा उन पे करप्शन का इल्जाम लगा रहा है, तो क्या वजह नवाज शरीफ के ऊपर नहीं लगा रहे? राणा साहब इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? सच को फेस करें, सच है। और शेर अफजल को एहसास हो गया, मुझे लगता है रात को उससे एहसास हुआ कि एक ख्वाब आई है, इशारा हुआ है कि उसने जो गलतियां की है उसका कफारा अदा किया, और उन्होंने ये बयान दिया। बताए राणा साहब, क्यों आज तक उन्होंने किसी ने नहीं कहा कि जाती उम्रा का खर्चा हम चला देंगे? एक बंदा बताए, कोई एक बंदा बताए। आज मैं बड़ा उदास था, इसने 2-3 ऐसे लतीफे सुनाए, मेरा मुंह ठीक हो गया। एक आधा हो रहे हो जा सुना देते कि वो नेक पारसा है, करप्ट नहीं है, और जेडी दुनिया की यूनिवर्सिटी पढ़ाए जा रहे हैं वो सब बेवकूफ है। तुम बिल्कुल ठीक हो। अच्छा आगे सुने, अब सुने, एक मिनट सुन, बताएं जी। अलीम खान साहब ने इल्जाम लगाया करप्ट है इमरान खान, है ना। जंगीर तगीर ने लगाया, ओन चौधरी ने लगाया, परवेज खटक ने लगाया, सब नहीं लगाया। अंदाजा करें लगा कौन रहे? यार हद हो गई यार, कौन लगा रहा है इल्जाम, किस पे लगा रहा है इल्जाम? वो अलीम खान अलाउद्दीन ने जो एक दफा कहा था ना, बानी पीटीआई के फ्रंट के ऊपर, वो मैं बता रहा हूँ ना, अलाउद्दीन ने एक फिल्म में कहा था, कहां से आए हैं ये झुमके, किसने दिए हैं ये झुमके, क्या कहते हैं ये? ओ भाई ये कौन है? करते थे और ये वो हैं जिनके मुतालिक नून लीग और आपके वजीर इत्तलात कसमें खा के कहते थे कि करप्ट है, चीनी माफिया है। ओन चौधरी को कहते थे ये तो नशे सप्लाई करते हैं। अलीम खान के लिए पता क्या कहते थे? ये वो लोग हैं पार के खर्चे बर्दाश्त करता जिनके और खर्चे बर्दाश्त कर देने ना किए हैं बड़े ने तो जेब पर्स और यार बड़े लोग। ओए अल्लाह कम लोगों को बनाते हैं ऐसा कि लोग उन्हें खिला के खुश होते। कभी जिंदगी में पर्स नहीं जेब में रखा। शुक्र करो तुम उन लोगों से कैद में शामिल भी हो। 2 रुपए जेब में नहीं गए, वजूद नहीं। तुम उनके वकीलों जो हाथ, तुम उनके वकीलों जिनके मुतालिक शेख रशीद कहते हैं मैं हाथ मिलाता हूँ ना तो मैं उंगलियां गिनता हूँ, उंगलियां पूरी है कि नहीं? ठीक है ना। जरदारी साहब को तुम कहते थे मिस्टर 10%, नवाज शरीफ के ऊपर मुकदमे तुमने बनाए थे, अलीम खान पे मुकदमे तुमने बनाए थे।
भाई मैं नहीं सर अच्छा आप अता तारा नहीं हो? अच्छा मैं समझा अता तारा से बात कर रहा हूँ। मैंने नहीं बुलाया अच्छा फिर ठीक है। मैं नहीं, तो I'm सिर्फ कह sorry। रहा हूँ कि जिसको आप डिफेंड कर रहे हैं नहीं, भाईजान मैं ने ठीक तो कभी धेले का बिजनेस नहीं किया, कदी भाईजान ने जेब च पर्स नहीं रखा, ठीक हो गया। उन्होंने ते कदी और जिंदगी छोड़ो यार, एक मिनट भैया, एक मिनट रंग रोगन भी सीधा एक मिनट है। जी। इससे एक बात का जवाब पूछे, वो इनके समधी ने, उनका कुड़म ने, जनाब नायब वजीर आजम पाकिस्तान ने, जनाब इसहाक डार साहब ने एफिडेविट दिया था कि मैं इनके लिए करप्शन करता किसी से भी आप करवा ओए, आपको किसी उठा के ले यार, जाए। हद हो गई यार। तो आपसे भी करवा सकते हैं, ये कौन सी बात है? तो फिर जिन्होंने आज तुम जिन्होंने कह रहे हो कि पार्टी छोड़ गए, तो उन्होंने की कसूर है? फिर उन्होंने कोई प्रेशर में ठीक है। बयान नहीं दी है, वो तो ओपनली यार क्या रोजाना बात करते हैं। खुदा के मेरा दिल का ताफ हुसैन की मैं कहूँ एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर, यार तुम किसी जगह तो खड़े हो और ये रंग रोगन और झूठ बोला है। मेरी बात सुने, एक मिनट। जफर आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। ठीक है राणा साहब, कौन सच बोल किसी रहा है? बात में नहीं अड़े। अलीम खान सच बोल रहा है और इसहाक डार जो है वो प्रेशर में बोल रहा है, अलीम खान अपनी मर्जी से बोल रहा है। के ले जाना या खुद अपनी मर्जी। अच्छा, एक मिनट राणा साहब, उन्होंने खिदमत करना था, सेवा करना था, ठीक है, और बड़े लोगों की सेवा करते हैं लोग और फिर उसके बाद कद काट बढ़ाते सिला क्या दिया और उन्होंने? भाई क्यों क्या जिन लोगों ने पैसे लगाए उनको सिला मैं ना क्या कि दिया? एक उठा के बाहर मिनट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मैं खुदा की कसम किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहता, नहीं तो आप 10 साल का निकाल ले इन लोगों का सारों का रिकॉर्ड, कौन कहां था और अब क्या है, किसके पास कितने एसेट थे और अब कितने, किसने किस तरह जमीनों के साथ मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा। सियासत में ना आता तो मलक रियाज से बड़ा प्लेयर बन सकता था बिजनेसमैन। तो मुझे अलीम खान साहब को क्यों कमेंट करवा रहे, मैं उन पे नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। बात हम कर रहे हैं मैं जनरल बात, तुम बार बार Exactly, अलीम खान हाँ। साहब, मैं अलीम खान साहब का जिक्र ही नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। नहीं आप सबकी बात कर रहे, जगीतरीन ऑलरेडी ये वो लोग हैं जिनके ऊपर तुम कल तक तुम्हारा मीडिया कहता था कि चोर चीनी है, माफिया चीनी है। माफिया JKT पे है, और ओम चौधरी के लिए क्या क्या नहीं कहते थे, आप अलीम खान साहब के लिए क्या क्या नहीं कहते थे, आज वो आपके साथ खड़े हुए तो नहीं, JKT तो PML के साथ नहीं है। छोड़ो यार, ठीक हो गया। लेकिन राज साहब मेरी बात सुने, आपकी बात, ये जो आप कह रहे हैं कि वो करप्शन है, करप्शन के इल्जाम वो उनकी बेगम पर और फराह गोगी पर लगाते रहे हैं, डायरेक्ट इमरान खान पर तो किसी ने भी करप्शन का इल्जाम नहीं लगाया। वो एक घड़ी का पंजाबी कहते ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਹੈ दूजे ਦਾ मुंह लाल है, अपना मुंह चपेड़ा ना लाल नहीं करीदा। आपको पाकिस्तान के कोने कोने से चोर की आवाज आई, आपको वो चोर की आवाज सोने नहीं देती। आप कहते हैं जब तक इमरान खान के साथ चोर नहीं लगेगा मैं ये पहला दुनिया का लीडर है करप्शन वास्ते बंदे रखे। आप भी कह रहे हैं कि मैं करप्ट है तो कौम ने नहीं मानना, तुझे केड़े के लगा दो। वो आज अगर इमरान खान का इंटरव्यू कर देना कि वो मैं कर, आपने उसके लिए क्या नहीं किया, ऑडियो उसकी निकाली, वीडियो उसकी निकाली, क्या नहीं किया, अवाम फिर भी उसके साथ खड़ी है। ठीक हो गया। ये होती है किसी बंदे की शख्सियत का असर, ताकत। अच्छा वो करप्शन नारोवाल के अंदर जलसा देख ले, मरियम साहब ने इतना बड़ा जलसा किया, तो आप देख ले, मैं क्यों देखा? देखो जरा टीवी, आप देख ले, कितने लोग हैं? मेरी बात सुने, ठीक हो गया जी, मुझे प्रोग्राम को वाइंड अप करना है, ठीक हो गया। कल देख लांगा था मैं। बहुत अच्छा डिफेंड कर दिया, किसने करप्शन किया किसने नहीं किया सबको पता है, क्या ही हम इसको डिफेंड करें। और तोशा खाना के केसेस अगर इमरान खान का आ गया फैसला, तो ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के क्यों नहीं आ रहे? उनके हाँ, उनके भी आने चाहिए ताकि पता चल जाए कि किसने कितने पैसे लिए और क्या किस्सा निकला। एनीवेज, आज के प्रोग्राम से इतना ही। चैंपियंस ट्रॉफी का कल से आगाज होने जा रहा है, आपने न्यूज 1 पर वो ट्रांसमिशन भी देखनी है। और ऑल द वेरी बेस्ट टू पाकिस्तानी टीम। कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला मैच है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफिज।